Okay, good morning, children. So, welcome once again to accountancy class, and we are continuing with the same topic, various principles of accounting. So far, we have covered 8 principles. The last concept which we were discussing was realization concept. I have told you another name of the same principle. What was its another name? Realization concept is also called as, okay, Yadavi want to answer. Yes, Yadavi. Revenue recognition. Very good. Its other name is revenue recognition concept. So revenue recognition concept, bete, means that whenever we are considered, like here we are discussing about when to record revenue, when to consider that revenue is being done. Like we have earned some revenue, we have generated some income. Revenue means income. So whenever, please write it down, explain. I have already in the previous class. You can write, according to this concept, revenue और सेल के साथ ही लिख लेते हैं एग्जांपल के साथ, और सेल्स will be recorded in the books of accounts when the goods are being manufactured and dispatched. Manufacture word skip भी कर सकते हो. The goods are being dispatched full stop. ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा लिख लो. even though दो पता है ना, DPHOUGH, though, even though money is being received or not, पैसे मिले या नहीं मिले, but we will write it कि सेल हो गई है. ठीक है, because we have dispatched the goods. ठीक है, even though the cash is being received or not. डन है बेटे. नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है और कॉन्सेप्ट, दैट इज materiality principle या materiality concept. Okay, so materiality, bete, here in commerce or in accountancy we call things which are important, we call them material things. Which are not important, we call them immaterial. Got it? Material means the things which are important. Things, it's not only things. Things means the issues, the concepts, or the situations which are important. They are called as material and important. For example, in our organization, we have purchased a machinery for rupees 10 lakh. Okay, ji? Now that machinery, for the reason, for the purpose for which we have purchased it, it's not worth, it's not good enough to like serve our purpose. So we need to discard that machinery and purchase a new one. Is it important information or not? Is it important? Yes, it is a very important concept because we have invested a lot of money and whole of the investment goes in vain. So it is very important in the organization to record such transaction. This is material transaction. या फिर this is material information. On the other hand, for example, this time we have purchased stationery में जो हमने पेन खरीदे थे, that was of Cello company, for example, and that pens, they are not good enough. रुक के चलते हैं, थोड़ा roughly चलते हैं. So we have made a decision that next time we will not purchase Cello pens in the stationery and some other pens. But हम उसको discard भी नहीं कर रहे हैं, उन pens को continue तो कर रहे हैं, but next time हम कोई और लेंगे. Is it material information? In a factory where we are manufacturing something in with the help of machinery, कुछ goods बन रहे हैं,
वहां पे स्टेशनरी कौन सी ली है या हमें अच्छी लगी नहीं लगी, इज इट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? दिस इज नॉट. So this type of information which is not that important related to the company, that we called as immaterial things or immaterial information. What is material information? Which is very much important for the business, which is required to be disclosed in the books of accounts. ठीक है जी, समझ आ गया आपको कि नहीं आया? छोटी मोटी, जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल देती हूँ, हमने 5,000 रुपए कहीं एडवांस दिए थे किसी सप्लायर को. फॉर एनी रीजन उस सप्लायर के साथ हमारा क्लैश हो गया और हमारा पैसा भी चला गया और गुड्स भी नहीं आए, वो हमारा लॉस हो गया. वी आर सपोज टू राइट इट. यस, ये हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का काम था, सप्लायर को पैसा देना और गुड्स लेना, तो वहां पे हमारा पैसा गया. सो दैट इज अ लॉस. इट इज टू बी रिकॉर्डेड, क्योंकि वो हमारा बिजनेस का रूटीन ऑपरेशनल एक्टिविटी में कोई भी गड़बड़ है तो वी आर सपोज टू राइट. On the other hand, the other example is हमारे पास कोई गेस्ट आए थे, हमने उन गेस्ट को कौन सी कोल्ड ड्रिंक देनी है या कौन सी नहीं देनी है, या हमने कोई चीज खरीदी उसमें 2 चीज कम आ गई. फॉर एग्जांपल हमने सैंडविच लाए गेस्ट को खिलाने के लिए, तो 4 में से 2 ही पीस आए, 2 नहीं है. इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस? दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. दिस इज immaterial information. So please write it down according to this principle. According to this principle, all the material information, material के साथ ब्रैकेट में important भी लिख लो. all the material information, ब्रैकेट में लिख लो important, is to be disclosed in the books of accounts is to be disclosed in the books of accounts, whereas immaterial information or unimportant information can be ignored. ठीक है जी, सबको बेटे क्लियर है? चलिए एग्जांपल आपको मैंने बता दी कि फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी का है, क्योंकि मशीनरी हमारा डे टू डे का बिजनेस है, मशीन से हमने कुछ बनाना है, वो हमारी इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल एक्टिविटी, उसके साथ रिलेटेड कोई लॉस है तो वी आर सपोज टू राइट. वेयर एज अगर कोई एक्स्ट्रा चीज में कुछ हो गया, जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ इसकी. हमारे बिजनेस में हमने गुड्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे गुड्स है, एक गुड की जो कॉस्ट है वो 6 रुपीज होती है. ठीक है, जो हम चीज बनाते हैं उस 6 रुपीज में अपना प्रॉफिट और टैक्स ऐड करके, फॉर एग्जांपल हम उस चीज को 10 रुपीज में मार्केट में बेच देते हैं. ठीक है, अपना प्रॉफिट और टैक्स 4 रुपए कमा के हम 10 रुपए की वो चीज मार्केट में बेच देते हैं. फॉर एनी रीजन, अगर तुम्हारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर किसी भी रीजन से तुम्हारा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 रुपए से 7 रुपए हो गया, विल इट अफेक्ट योर बिजनेस? इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट, ये बताइए मुझे. इज इट इंपॉर्टेंट? अगर आपके जो गुड्स हैं किसी भी रीजन से 6 रुपए के बनते थे 7 रुपए के बनने शुरू, विल इट अफेक्ट यू? देवांशी वांट टू आंसर. यस देवांशी. यस मैम. ओह, 1 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा बेटे बिजनेस में, बताइए. मैम अगर कोई चीज बल्क में कोई परचेज करे फिर तो फर्क पड़ेगा. चलिए, आपने बताया सही, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही, मैं बता देती हूँ. यहाँ पे हमें देखने में लग रहा है सिर्फ 1 रुपए का फर्क पड़ा है. क्या फर्क है? सिर्फ 1 रुपए. जो चीज 6 रुपए की हम बनाकर 10 रुपए में बेचते थे, इट मींस वी अर्न 4 रुपीज पर पीस. ये इतनी छोटी सी चीज, कोई मे बी ये एक हेयर बैंड है सर में लगाने वाला, इट इज अ हेयर बैंड. सो द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख हेयर बैंड्स.
1 लाख हेयर बैंड 6 रुपए के बेच के 10 रुपए में कमाते थे, मतलब बेचते थे वो बना के, तो दे कॉस्ट 6 लाख उनकी कॉस्ट पड़ती थी, 10 लाख वो कमा लेते थे, 4 लाख बचता था। अब उनको 7 लाख रुपए में वो चीज पड़ेगी और यहाँ पे 10 लाख रुपए उनके पास आएंगे। तो देखने में हमें 1 रुपया लग रहा था, बट दिस 1 रुपी विल लीड टू 1 लाख रुपीज का लॉस। समझ रहे हो? ये हमें दिखा नहीं सामने से, ये हमारा 1 लाख रुपए का लॉस है। और वहीं अगर ये गुड्स 1 लाख की जगह 50 लाख होती तो अब कितना लॉस होगा? 50 लाख रबड़ बैंड बनाती है कंपनी, 6 रुपीज का एक होता है, 10 रुपीज का बेच देती है। 1 रुपए का खर्च सिर्फ बढ़ गया, ओनली 1 रुपी कॉस्ट इज बीइंग इंक्रीज्ड। नाउ दीज 50 lakh rubber bands, now company will be manufacturing at 7 rupees and selling at for 10 rupees per piece. Can anyone please tell me how much loss we are going to suffer now? 1 रुपया कॉस्ट बढ़ने से कितना लॉस हो गया हमारा? एनीवन? कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, मैथ्स आपकी अच्छी है, बताइए। ओके, देवांशी, हाउ मच? देवांशी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम 5 लाख। 5 lakh only? Anyone else? 50 लाख। 50 लाख रुपीस बेटे, 50 लाख। तो हमें लग क्या रहा था 1 रुपया ही तो बड़ा है, फिर क्या हो गया? 1 रुपया कोई खरीदेगा? तुमने एक रबड़ बैंड खरीदना, तुम्हें तो 1 ही रुपए का लॉस हुआ। तुमने 6 रुपए की चीज 7 रुपए में मिल रही है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कंपनी को 50 लाख रुपीस का लॉस होगा अगर यहाँ 1 रुपी भी बढ़ गया। तो दिस 1 rupee is material information. This is important information in the business because it is going to affect the business to a greater extent. अब इसी कंपनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 रुपए का फर्क पड़ा तो मैंने बोला ये तो मटेरियल इंफॉर्मेशन है। इसी कंपनी ने क्या किया, पिकनिक लेके जाते थे अपने वर्कर्स, ठीक है जी। पिकनिक के लिए इन्होंने कॉस्ट कर दी थी कि 2 लाख रुपीस में हमने पिकनिक करा देनी है अपने वर्कर्स। कितने में करा देंगे? 2 लाख रुपए में। लेकिन एक्चुअल में इनकी कॉस्ट बढ़ गई 2,50,000। कितनी कॉस्ट हो गई? 2,50,000। पिकनिक पे लेके गए, थोड़ा खर्चा ऊपर नीचे हो गया, तो जहां पे उनकी 2 लाख रुपीस में पिकनिक होने वाली थी, नाउ दे हैव टू बेयर 2,50,000। नाउ टेल मी, इज इट दैट इंपॉर्टेंट? It is important, but it is not that important as this 1 rupee was. समझ रहे हो? यहाँ तो खर्चा बढ़ गया, नो प्रॉब्लम, वी हैव टू लाइक शो इट दैट 50,000 एक्स्ट्रा मनी वी हैव टू पेड। यहाँ पे हमारे इस पिकनिक के नाम से जो एक्सपेंस है वो एक्स्ट्रा लग गया, दैट इज अनदर थिंग। ऑन द अदर हैंड, हियर वी कैन सी दैट जस्ट विद अ डिफरेंस ऑफ 1 rupee द कंपनी हैज सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीस 50 lakh। दिस इज हाउ इन द बिजनेस हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है और हमें ये देखना पड़ता है कि which information is going to affect the working of the business, which information is going to like have important impact on the business. Anshul want to ask something. Yes bete, Anshul. मैम फिर ऐसा नहीं कर Anshul, सकते, you can unmute yourself. कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस 11 रुपीस कर दे तो? बेटे I can't hear you, please speak little louder. मैम अगर कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस 11 रुपीस कर दे, कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस 11 रुपीस, बेटे होता नहीं है ना ऐसे, मतलब वो तो लॉन्ग रन में हो सकता है, लॉन्ग रन में इट इज पॉसिबल, शॉर्ट रन में इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे आप एग्जांपल लो, एक पेन है जो भी आप खरीदते हो 10 रुपीस का मिलता मार्केट में, कंपनी 11 रुपए का बेचे तो क्या होगा? कंपनी ने आगे वो जनरल स्टोर्स को भी पहले बेचेगी, बाद में फिर वो। मैंने एक्चुअली यहाँ पे ओवरव्यू ही लिया था ना, मैंने 10 रुपीस का यहाँ कस्टमर का प्राइस ही लिया था, इसमें सारा कुछ ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये 10 रुपए का कस्टमर को मिलता है, कंपनी ने अगर इसका रेट 11 रुपए कर दिया, कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर विल शिफ्ट ऑन टू द अदर कंपनी। कस्टमर कहेगा मैं घर से 10 रुपए लेके निकला पेन लेने, मुझे 10 रुपीस का ही पेन चाहिए, मैं 1 रुपया छुट्टा कहाँ से लेके आऊँ? उसी रेट में कोई और कंपनी 10 रुपए का पेन दे रही, मैं क्यों लूँ 11 रुपए का? तो शॉर्ट रन में कंपनी के लिए कॉस्ट इंक्रीज करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इवन जो सप्लायर, जो होलसेलर, रिटेलर होते हैं वो भी नहीं खरीदते हैं। अगर 1 भी रुपया बढ़ा दो ना रेट,
तो दे विल नॉट बाय फ्रॉम द फैक्ट्री, दे विल से वी विल बाय फ्रॉम सम अदर कंपनी। जो होलसेलर रिटेलर होते हैं वो उन्हीं कंपनीज का प्रोडक्ट लेना प्रेफर करते हैं जिनका प्राइस मोर और लेस स्टेबल रहता है, जिनका प्राइस उनको कंफर्टेबल लगता है। अगर उनको लगेगा कि ये कंपनी रेट बढ़ा रही है, वो किसी और कंपनी से ले लेंगे वो चीज, किसी भी चीज की एग्जांपल हो। ठीक है, तो लॉन्ग रन में प्राइस कैन बी इंक्रीज्ड बट इन शॉर्ट रन प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ बेसिकली यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट। सो वट एवर इज इम्पोर्टेंट ये आपको पता चल गया, दैट इज टू बी रिकॉर्डेड, वट एवर इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट कैन बी इग्नोर्ड। 2 रुपए की पेंसिल ली, उसका सिक्का बार बार टूट रहा था, डिस्कार्ड करनी पड़ गई, तो 2 रुपए की पेंसिल लिखने की जरूरत है? ऐसे 2-2 रुपए के 4-4 रुपए के कई सारे खर्चे हो जाते हैं एक्स्ट्रा, तो हम उसको इकट्ठा करके मिसलेनियस में लिख देते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट दैट इज नॉट मटेरियल इंफॉर्मेशन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट इसका नाम है, इट्स नेम इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, नाउ मेरे ख्याल से ये दिस इज द 11th वन, ऑल इन ऑल टोटल गिन के देखना, ये 11th वन पॉइंट है कि 10th है? ओके, चलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट अब क्या कहता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हम जनरली अपनी लाइफ में भी करते हैं कि व्हेनेवर वी अर्न सम इनकम बट वी ट्राई टू डू, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट की किसी भी टाइप के बिजनेस की, लगा लो फॉर एग्जांपल आपने एक रेस्टोरेंट खोला, एक रेस्टोरेंट खोला आपने, उसमें आप बना की चीजें जो भी फूड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू विल कैलकुलेट कि मैंने कितना पैसा कमाया, फॉर एग्जांपल यू हैव अर्न रेवेन्यू, लिख रही हूं मैं, आपने रेवेन्यू पूरे साल में कमाया है 5 लाख, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो 5 लाख रुपए मैंने कमाए ये मेरी प्रॉफिट है? ये इस 5 लाख प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपका कितना पैसा लगा, आप इसमें से माइनस करोगे कि मेरा इसमें से कितना एक्सपेंस हुआ, और जो माइनस करके आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका टोटल 2 लाख रुपए का खर्चा आया और जो बच गया है पैसा दैट विल बी योर प्रॉफिट। ठीक है जी, सो मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज, प्लीज राइट इट डाउन, एक लाइन में लिख लीजिए, आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज while preparing financial statements of the business, while preparing financial statements of the business, we should match इनकम, जो भी इनकम हुई हमारी, इनकम अर्न, वी शुड कंपेयर या मैच इनकम अर्न, मैच की जगह कंपेयर वर्ड भी लिख सकते हो, आपको बेटर समझ आएगा उससे। वी शुड मैच या कंपेयर इनकम अर्न विद द अमाउंट स्पेंट टू अर्न दैट इनकम। इनकम को किससे कंपेयर करेंगे? अमाउंट स्पेंट टू अर्न दैट इनकम, उस इनकम को कमाने के लिए कितना पैसा लगा। ठीक है, कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एक फ्रूट वाले की एग्जांपल ले लेते, उसने फ्रूट की एक मान लो वो हॉकर था, उसने एक रेड़ी लगाई, उस रेड़ी में क्या किया उसने 5,000 का फ्रूट लिया और अपना वहां डिस्प्ले कर दिया 5,000 का। बाय द एंड ऑफ द डे वो देखता है ओके 5,000 लगा के मैंने 8,000 कमाए, तो द डिफरेंस बिटवीन द टू विल बी द प्रॉफिट। लिखिए, according to this concept, difference between
difference between income earned and expenditure. Income earned, income earned and expenditure, जो खर्चा income, जो खर्चा उसने किया, बेयर किया, will be the profit, will be the profit। और ये वाला एक फॉर्मूला आप लिख लो, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करो तो प्रॉफिट आ जाए। ठीक है जी, रब कर दे। I think so that all the principal concepts are being covered now. Till now, 3 conventions are left that we are going to start now. Conventions I have told you, while preparing books of accounts, we are supposed to follow a particular methodology. किसी एक particular way से आप चलते हो, that is called as conventions. Conventions में हमारे पास first convention आ जाती है prudence. Prudence का दूसरा नाम कंजर्वेटिव भी होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिज्म से ज्यादा समझ आएगा। प्रूडेंस एक नया वर्ड है। कंजर्व करना, कंजर्व करना आपने साइंस में सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जूनियर क्लासेस में। तो कंजर्व करने का मतलब होता है प्रिजर्व करना, सेव करना, सिक्योर करना, ताकि कोई चीज, मतलब जैसे हम अपने नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना के। सिमिलरली इन अकाउंटेंसी आल्सो वी आर सपोज्ड टू कंजर्व, वी आर सपोज्ड टू कंजर्व व्हाट? हम तो है भाई फाइनेंस को कंसिडर करने वाले बंदे, सो ऑल द टाइम वी विल बी कंसिडरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वी विल बी कंसिडरिंग फाइनेंस। There's a lot of noise. Okay. अब बिजनेस में हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, घर पे भी करते हैं हमारे पेरेंट्स, कि जितनी भी इनकम होती है एवरी मंथ, सारा का सारा पैसा तो स्पेंड नहीं ना कर देते, कुछ ना कुछ पैसा प्रिजर्व करके, कंजर्व करके रख लेते हैं, रिजर्व करके रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? कि कोई मुश्किल का टाइम आ जाएगा, कोई कंटिंजेंसी आ जाएगी, तो वी विल बी एबल टू कवर दैट एक्सपेंस फ्रॉम दिस इनकम, वी विल बी एबल टू कवर दैट सिचुएशन with the help of this money we have kept as a reserve. Similar thing is happening in accountancy, in business also. The concept says during the year आपको क्या करना है, whenever you are earning some money और आपको पता है कि आने वाले टाइम में कोई लॉस होने वाला है, तो डू कंजर्व मनी फॉर दैट लॉस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने एक मशीनरी परचेज की, उस मशीन की कॉस्ट की 1 लाख रुपीज और उस मशीन की लाइफ है 5 इयर्स। अब इसका क्या मतलब है? 1 लाख रुपए की मशीनरी 5 साल चलेगी, मतलब एवरी ईयर 20,000 की मशीनरी खराब हो जाएगी। पहले साल के बाद 1 लाख से 80,000, 80 से 60, 60 से 40, 40 से 20 और 6वें साल में जाके 20 से 0। तो ये मशीन मेरी आफ्टर 5 years its value will be 0. So what I am supposed to do at the end of 5 years I need to buy a new machine. तो एकदम से 1 लाख रुपए कहां से लाऊंगी मैं? So what is better? When I know that I need to replace this machinery at the end of 5 years, can I do something like this? कि every year मैं 20,000 रुपए सेव करूं, 20,000 plus 20,000 plus 20,000 plus 20,000 plus 20,000. So by the end of 5 years, जब इसके 5 years पूरे हो जाएं, तो मेरे पास 1 लाख रुपया अपने पास पड़ा होगा इन दी फॉर्म ऑफ कैश। वो 1 लाख रुपए से मैं क्या करूंगी? एक न्यू मशीनरी परचेज कर लूंगी। दिस इज व्हाट इज एडवाइज्ड इन दिस प्रिंसिपल। इसीलिए कन्वेंशन का पार्ट है, अपने अकाउंट्स बनाने ही कंसिडर करना है।
अगर आपकी कोई मशीन है जिसकी लाइफ खत्म होने वाली है जब भी, तो आपने साइड बाय साइड उसके लिए पैसा सेव करना है। आपको पता है आपके डेटर्स है, कुछ ना कुछ डेटर बैड हो जाते हैं, तो उन बैड डेटर्स को कवर करने के लिए भी आपने पैसा सेव करके रखना है। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। इस प्रिंसिपल के अंदर प्रूडेंस मतलब सेम है, वर्ड अलग है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एन अकाउंटेंट while preparing books of accounts, यहाँ हम अकाउंट्स की बात करें, अकाउंटेंट वर्ड इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। while preparing books of accounts is required to make, ये रब कर दो, मेक, यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ, देखो, प्रोविजन। ये वर्ड आप बार बार पढ़ोगे, ध्यान से लिख लीजिए, प्रोविजन। एन अकाउंटेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। जितने भी टाइप के लॉसेस हैं सबके लिए, जो हमें पहले से पता है कि दिस लॉस में अकर इन द कमिंग फ्यूचर, सो वी आर सपोज टू सेव मनी टू कवर दैट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, प्रोविजन इज बीइंग मेड फॉर ऑल पॉसिबल अपकमिंग लॉसेस। क्लियर है बेटे? इसके आगे लिखिए एक लाइन में, देयर इज अ फेमस सेइंग, एक सेइंग है, मतलब एक इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है आपने सेइंग, प्रोवर्ब जैसा, उसमें लिखिए रिजर्व फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, मैं यहाँ लिख दूं, बट यू आर सपोज्ड टू राइट, ऐसे करके लिखना है, रिजर्व फॉर all possible losses comma but never anticipate any profits, but never anticipate any profit, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो एक बड़ा फेमस प्रोवर्ब है अकाउंटेंसी में कि आने वाले जितने भी लॉसेस हैं उसके लिए पहले से पैसे बचा के रखो। मम्मी पापा करते हैं ना, अप्रैल में एडमिशन करानी है बच्चे की, बड़ा खर्चा हो जाएगा, न्यू एडमिशन कराएंगे, नई किताबें लेनी पड़ेंगी, नई कॉपियां लेनी है, कोई बच्चे यूनिफॉर्म भी चेंज होती है, आप बढ़ते हुए, आज आपकी एज ऐसी है, ग्रोइंग एज, यूनिफॉर्म चेंज करनी है, नया बैग लेना है बच्चे को, तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, दे यूज टू सेव मनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में ज्यादा खर्चा होने वाला, मोर ओवर उनको पता दिवाली पे बड़ा खर्चा होता है, तो दिवाली के लिए भी पैसा सेव करते, किसी रिश्तेदार की शादी है, मामू की, मासी की, किसी की भी, उसके लिए भी पैसा सेव करते, अरे नहीं नहीं 4 महीने बाद उसकी शादी है, बड़े पैसे लगने वाले। तो जितने भी, समझ रहे हो, रियल लाइफ में लगा के आपको एग्जांपल दे रही हूँ, whatever possible losses are going to be there in the coming future, we used to reserve for them। हम घर में भी ऐसा करते हैं, बिजनेस में भी आपको ऐसा ही करना है, जितने भी आपके पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं उसके लिए पैसा बचा के रखो, लेकिन नेवर एंटीसिपेट एनी प्रॉफिट। ये कल भी बताया था मैंने एग्जांपल, एंटीसिपेट नहीं करने लग जाना पहले। एंटीसिपेट मतलब कि लॉटरी की टिकट खरीदी और अनाउंसमेंट कर दो, भाई मेरी लॉटरी लगने वाली है, लॉटरी लगने वाली है, पैसे आएंगे, तुम ये ले लेना, तुम्हें तो मैं नया बाइक ले दूंगा, तुम्हें नया फोन ले दूंगा, तुम्हें नया घर ले दूंगा, ऐसे नहीं करना है। वी आर सपोज टू वेट, अगर कोई प्रॉफिट होगा उसके बाद उसको लिखेंगे, लेकिन लॉसेस को होने से पहले ही एंटिसिपेट कर लेना है कि लॉस होने वाला है, तो पहले से पैसा बचाएगा। ठीक है जी, एग्जांपल में लिखिए, एग्जांपल में लिखिए, ऊपर लिखते, यहाँ लिख देते हैं, हम किस चीज की प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किस किस चीज की प्रोविजन होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज बीइंग मेड। और बैड डेट्स पता है ना क्या होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स,
ये भी बनाई जाती है कंपनी में। पता है बैड होने वाले हैं, पहले से पैसा बचा लो। पता है डेप्रिसिएशन होने वाली, पहले से पैसा बचा लो। इसी तरह से प्रोविजन फॉर टैक्स भी होती है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी होती है। हमें पता है एट द एंड ऑफ द ईयर टैक्स देना है, तो इकट्ठा बहुत सारा टैक्स देने से अच्छा क्या है, पहले से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखो, एट द एंड ऑफ द ईयर टैक्स उसमें से पे कर दो। इकट्ठा पैसा हमें ऐसे देना मुश्किल लगता है। डन है बेटे। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे शिफ्ट करें, यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल और कन्वेंशन विच वी आर डिस्कसिंग, इट इज वेरीफायबिलिटी। Name of the principle is verifiability. Jaskaran wants to ask something. Jaskaran, मैम जो आपने एग्जांपल दिया है बैड डेट्स वाला, मैम बैड डेट्स तो मतलब हमने अज्यूम किया है ये बैड हो जाएंगे, वो मतलब श्योर पूरी नहीं श्योरिटी थोड़ी है। नहीं है, नहीं। हाँ जी मैम, बिल्कुल यू आर राइट, वी आर नॉट पर बाकी जो बाकी एग्जांपल्स हैं वो श्योर है, एक ही यही है। पता क्या होता है बेटे, मैं बताती हूँ। जैसे मैं तुम्हें अभी एक एग्जांपल दे देती हूँ। हमारे घर वाले क्या करते हैं, हमारे लिए पैसा बचा के रखते हैं, सोचते हैं कि कहीं भगवान ना करे कि कुछ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो हम उसके लिए कवर यहाँ से पैसा करेंगे। तो अगर नहीं हो तो वेल एंड गुड, वो हमारे लिए सेविंग होगी ना। हमारे बिजनेस में भी ऐसा होता है, हम पैसा बचा के रखते हैं। जैसे हमने बोला कि एग्जाम्पल बैड डेट के लिए मैंने पैसा सेव किया। बैड डेट किस बेस पे रखते हैं पता है? मेरे को 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 साल से एक ट्यूशन सेंटर चला रही हूँ, और मुझे पता है कि एवरी ईयर अगर मेरे पास 50 बच्चे पढ़ते हैं, उन 50 में से 5 बच्चे पैसे नहीं देते। 5 बच्चे मतलब 10% हो गया ना, 50 का 10%, 5 चिल्ड्रन, तो 5 बच्चे पैसा नहीं देते, तो 10% हो गया। तो कंपनी को भी पता होता है कि अगर मैं 10 साल से बिजनेस कर रही हूँ तो कितने % लोग पैसा नहीं देते हैं। उस बेसिस पे वो एज्यूम करते हैं कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 10% पैसा तो मर जाएगा। वो 10% पैसा वो एज ए रिजर्व रख लेते हैं, रिजर्व फॉर बैड डेट। इन केस कोई बैड डेट होगा उसमें से कवर हो जाएगा। अगर मान लो बैड डेट हुआ ही नहीं तो हमारा फायदा। फिर हम क्या करेंगे, उस पैसे को अगले ईयर कंटिन्यू करेंगे, अगले से अगले ईयर कंटिन्यू करेंगे, उसको हम एज ए रिजर्व लेके जाते जाएंगे आगे। हमारे लिए वो सेविंग की तरह शो होएगा हमारी लिस्ट में, ठीक है। ये कंपनीज एक्ट का रूल है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं करते। ये हमें, अगर हम बाय लॉ चलते हैं तो कंपनीज एक्ट ने बोला है कि प्रोविजन बनानी है, हमारे पास चॉइस भी नहीं है इसकी। इफ वी आर फॉलोइंग रूल्स वी आर सपोज टू। देखो यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये सारा कुछ ICAI ने दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं हमको, ठीक है। सो वी आर सपोज टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स। हो या ना हो लॉस, कल को वो ना हुआ, मान लो मैंने टैक्स से ज्यादा सेव कर लिया पैसा, लेकिन टैक्स उतना हुआ ही नहीं, टैक्स कम हुआ, सो इन दैट केस वट एवर मनी इज लेफ्ट विथ मी दैट आई विल यूज इन नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, लाइक दैट आई विल यूज। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज वेरीफाइबिलिटी। अटेंडेंस लिंक आई हैव शेयर्ड इन द चैट बॉक्स, प्लीज फिल इट वेल इन टाइम। वेरीफाइबिलिटी को ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, कई तरह के नाम से इसकी। वेरीफाइबिलिटी इज मोर एप्रोप्रिएट व्हाट आई फाइंड, सो आई विल राइट इट। वेरीफाइबिलिटी, तो वेरीफाई का मतलब क्या होता है बेटे? वेरीफाई करना किसी भी चीज को। हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए, पुनीत को दिए मैंने 10,000, मैंने बोला जाओ और बुक्स लेके आओ, एक लिस्ट ऑफ बुक्स दे दी। पुनीत गया, बुक्स लाके मेरे सामने रख दी और कहता मैडम सारे पैसे लग गए। मैंने कहा नहीं बाकी पैसे वापस कर, मुझे तो पता है बचने। कहता नहीं मैडम सारे पैसे लग गए। तो मैं इसको बोलूंगी वेयर इज द प्रूफ, वेयर इज द बिल, हाउ डू आई कम टू नो कि कितने की बुक्स आई? क्या मैं अपने अकाउंट्स में ऐसे लिख दूं कि बुक्स आई 10,000 की, जबकि वो बुक्स तो 10,000 की है ही नहीं है। और अगर 10,000 की है भी तो व्हाट आई नीड अ प्रूफ, और व्हाटएवर प्रूफ पुनीत विल बी प्रोवाइडिंग मी, जो भी बिल वो मुझे देगा, जो भी कैश मेमो वो मुझे देगा,
वो बिल हम अपने बुक्स में साथ में अटैच करेंगे। समझ गए? हम अपने बिल को क्या करेंगे? साथ में अटैच करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चाहे वो किसी भी चीज का है। तो वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल कहता है जब आप अकाउंटेंट बन जाओगे, मुंह उठा के कुछ भी नहीं लिख देना अकाउंट्स में। आपने वही चीज लिखनी है जिसका आपके पास प्रूफ है, जिसका आपके पास बिल है, जिसका आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, जिससे आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। मान लो भगवान ना करे आप कल को नहीं हो मतलब आपने कंपनी छोड़ दी, आप किसी और कंपनी में अकाउंटेंट बन गए, आपकी जगह नया अकाउंटेंट आया, हाउ ही विल चेक कि जो आपने किया वो सही है कि गलत है? हाउ ही विल वेरीफाई कि किताबें 10,000 की थी कि नहीं थी? विद द हेल्प ऑफ द बिल, with the help of the proof which you have attached in the documents। ठीक है जी, क्लियर है बेटे? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू राइटिंग इट। वेरीफाइबिलिटी की डेफिनेशन लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट, फटाफट लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, only those transactions will be recorded in the books of accounts, only those transactions will be recorded in the books of accounts which have its source document, SOURCE, source document as a proof, जिसका आपके पास प्रूफ है